Hi viewers, this is Akhilesh sir with a new video of science, chapter number 8, Cell, Structure and Functions. In this video, we will understand about cell organelles. Cell organelles can also be considered as parts of the cell. इस वीडियो में हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों के बारे में समझेंगे. As you can see, this is the picture of animal cell. And in this picture of animal cell, the name of all the organelles are given, such as you can see there is mitochondria, vacuole, cell membrane, Golgi body, nucleus, endoplasmic reticulum, lysosome, ribosomes, and cytoplasm. Now, similarly, this is the picture of plant cell, and the name of all the organelles of plant cell are given, such as chloroplast, lysosome, Golgi body, ribosomes, nucleus, vacuole, cell membrane, cell wall, cytoplasm, mitochondria, and endoplasmic reticulum. Now, let us understand the working or the function of each and every cell parts or cell organelles. आइए अब हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं, जितनी भी अंगिकाएं हैं, उनके काम एक एक करके समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सेल मेम्ब्रेन. The working or the function of cell membrane is to control what enters and leaves the cell. आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है. तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले और कोशिका में से बाहर निकलने वाले चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखता है. Now, let us understand about nuclear membrane as well as about nucleus. First of all, let's talk about nuclear membrane. Nuclear membrane controls what enters and leaves the nucleus. As far as nucleus is concerned, nucleus is the control center of the cell. आइए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ में न्यूक्लियस की. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो कोशिका के अंदर सबसे बीच में जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रवेश करने वाले और न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाले जो भी चीज़ होते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है. और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस पूरे सेल का, पूरे के पूरे कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है. Now, let us understand the function of chromosomes. Chromosome is found in the nucleus. Chromosome keeps genetic information in the nucleus. आइए अब हम समझते हैं क्रोमोसोम्स के काम के बारे में. क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में यानी कि कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि आनुवांशिक जानकारी होती है. Now, let us understand about the function of endoplasmic reticulum.
Endoplasmic reticulum is transport system in cell. Actually, there are two types of endoplasmic reticulum. First is rough endoplasmic reticulum and second is smooth endoplasmic reticulum. If we talk about rough endoplasmic reticulum, then rough endoplasmic reticulum is protein factory in the cell. As far as smooth endoplasmic reticulum is concerned, smooth endoplasmic reticulum is lipid factory or you can say fat factory in the cell. आइए अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि यातायात प्रणाली कहा जाता है। दरअसल दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ज़्यादातर कोशिकाओं में। उसमें से पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ तक बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर रिबोसोम होते हैं जिसमें प्रोटीन बनता है। और जहाँ तक बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसके अंदर लिपिड या जिसे हम फैट भी कहते हैं या वसा चर्बी, तो वो तैयार होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए उसे लिपिड फैक्ट्री या फैट फैक्ट्री भी कहा जाता है। Now, let us understand about the function of ribosomes. Ribosome is such an organelle which makes proteins. आइए अब हम समझते हैं रिबोसोम के काम के बारे में। रिबोसोम कोशिका का एक ऐसा अंग है जिसमें प्रोटीन तैयार होता है। Now, let us understand about the function of Golgi body. Golgi body is also called Golgi apparatus. Golgi body is such an organelle of the cell which packages proteins. आइए अब हम समझते हैं गोल्जी बॉडी के काम के बारे में। गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी कोशिका का एक ऐसा अंग है जो प्रोटीन की पैकिंग करता है। Now, let us understand about the function of vacuole. Vacuole stores water और waste. आइए अब हम बात करते हैं वैक्यूल के काम के बारे में। कोशिका के अंदर जो भी पानी या कचरा इकट्ठा होता है वो वैक्यूल के अंदर ही इकट्ठा होता है। Now, let us understand about the function of lysosome. Basically, lysosome is the protector of the cell. But sometime when lysosome explode, then it also damage the whole cell. That's why lysosome is also called suicidal bag. The main function of lysosome is to break down old cell parts. आइए अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के काम के बारे में। वैसे तो लाइसोसोम कोशिका की रक्षा करता है, कोशिका का रक्षक होता है, लेकिन जब कभी भी लाइसोसोम फटता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो उस
सिचुएशन में, उस परिस्थिति में वो पूरी कोशिका को भी नुकसान पहुंचाता है और पूरी की पूरी कोशिका टूट जाती है। दरअसल लाइसोसोम का जो मुख्य काम है वो तो कोशिका के जो भी अंग पुराने हो गए हों या खराब हो गए हों उनको तोड़ना है। Now let us understand about the function of mitochondria. Mitochondria is such an organelle which provides energy to the cell. आइए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के काम के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, शक्ति देने का काम करता है। Now we shall understand about chloroplasts, which is only found in plant cells. Chloroplasts contain a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is essential for photosynthesis, which is the process by which plants make food. आइए अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में यानी कि वनस्पति कोशिका में ही पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरे रंग का कण पाया जाता है यानी कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सेल वॉल of the plant cell. Cell wall is not found in animal cell. It is just found in plant cell. That's why we are understanding the cell wall separately. Cell wall surrounds the plant cell and it protects the cell. आइए अब हम बात करते हैं वनस्पति कोशिका की दीवार के बारे में, सेल वॉल के बारे में। दरअसल कोशिका की दीवार यानी कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही पाई जाती है, प्लांट सेल में ही पाई जाती है। सेल वॉल यानी कि कोशिका की दीवार एनिमल सेल में यानी कि प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसीलिए हम अलग से कोशिका की दीवार के बारे में समझ रहे हैं। वनस्पति कोशिका में जो कोशिका की दीवार होती है वो वनस्पति कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है और ये वनस्पति कोशिका की रक्षा भी करती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म is mostly made up of water but contains some proteins also. The soup of the cell, jelly-like substance, open space of the cell. Cytoplasm supports all of the cell organelles. आइए अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म दरअसल सेल के अंदर की यानी कि कोशिका के अंदर की जो ज़मीन होती है, जो धरातल होती है या फ्लोर कह लीजिए, जैसे हमारे घर की ज़मीन होती है, फ्लोर होता है जिसके ऊपर हम चलते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर जो ज़मीन होती है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर की जो ये ज़मीन है, जो धरातल है, जो उसका फ्लोर है, वो मुख्य रूप से पानी का बना हुआ होता है और इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी पाया जाता है। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, लेकिन इसके ऊपर
सभी कोशिका के सभी अंग तैरते रहते हैं, इसके ऊपर ही स्थित होते हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।